Good morning, students. I welcome you all to the online class of SGOI. So, students, today we will be starting exercise 15B, that is based upon the word problems of linear equation. ठीक है, तो यहाँ पे हमको word problems को read करके पहले equation form करनी होगी, then we have to solve it so that we can get the value of the variable. Okay, so let's start from question number 1, which is a very basic kind of question. It is saying that 17 less than 4 times a number is 11, then you have to find the number. So first of all you will be let the number is equal to x. Okay, and if the number is x, then the question is saying 17 less than 4 times a number. 4 times a number means 4x, 17 इससे कम. ठीक है, question is 4 times the number से 17 कम करने पे हमें क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है. Therefore we can form the equation that is 4x minus 17 is equal to 11. Then we can transport this minus 17 to the right hand side of the equal to sign. Then it will become 4x is equal to 11. This minus 17 will become plus 17. So this will be equal to 4x is equal to 28, and from here x will be equal to 28 upon 4. 1s and 7s. So from here x will be equal to 7. And that is the answer of this question. Okay, so this question was very easy, and you have been doing such kind of questions in your previous classes as well, that is in your class 6th and class 7th. So I don't think this was a tricky one for you. Now let's move further. So up to question number, now I guess up to question number 10 I don't think you will be facing any problem. Question number 10 तक के जो क्वेश्चन है वो सारे 6 स्टैंडर्ड के इक्वल टू हैं, तो यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. So let's move to question number 11. Question number 11 is saying that two numbers are in the ratio 3:4. There are two numbers on the ratio given है, ratio is equal to 3:4. ठीक है, दो नंबर्स हैं, उनका रेशियो गिवन है that is 3:4, and their sum is 84. और सम दिया है नंबर्स का, sum of numbers is equal to 84. Then the question is saying that you have to find the numbers. आपको numbers find करने हैं. डेफिनेट सी बात है कि अगर रेशियो 3:4 है तो नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स विल बी इक्वल टू 3x and 4x. ठीक है, ये आप रेशियो में पढ़ चुके हो. अगर रेशियो 3:4 है तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 3x हो जाएगा और 4x हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम इज इक्वल टू 84. पहला नंबर दैट इज 3x प्लस 4x, सम इज इक्वल टू 84 कह रहा है. इसका मतलब दो नंबर्स का सम करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू 84. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट 7x इज इक्वल टू 84. देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 84 अपॉन 7, दैट इज इक्वल टू 12. सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू 12. ठीक है, लेकिन हमें x का वैल्यू फाइंड करना, हमें दो नंबर फाइंड करने. फर्स्ट नंबर इज 3x एंड द सेकंड नंबर इज 4x. तो फर्स्ट नंबर विल बी इक्वल टू, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 3x है, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट विल बी इक्वल टू 36. ओके, सिमिलरली सेकंड नंबर किसके इक्वल है, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 4x. ठीक है, तो दिस विल बी गिविंग अस 4 into 12, that will be equal to 48. So from here we can clearly say that the first number was 36 and the second number was 48, and that's the answer of this question number 11. ठीक है, let's move further. Question number 12 और 13 इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो आप कर लेंगे अपने आप. Now let's move to question number 14. This is very important as far as your exams are concerned. So please focus on this question number 14. Question 14, the question is saying that the sum of 3 consecutive odd numbers is 75. Then find the numbers. बोला जा रहा है 3 लगातार odd numbers का sum 75 है, तो आपको numbers find करने हैं. तो हम let कर लेते हैं, let first odd number इज इक्वल टू x. ठीक है, हमने लेट कर लिया कि फर्स्ट ऑड नंबर किसके इक्वल है, x के इक्वल है. लेकिन यहाँ बात हो रही है 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की, दैट मींस 3 लगातार आने वाले ऑड नंबर्स की. अगर पहला ऑड नंबर x है
तो दूसरा ऑड नंबर कितना होगा, x प्लस 2 होगा। वाई, बिकॉज अगर आप किसी ऑड नंबर में 2 ऐड करते हो तभी नेक्स्ट ऑड नंबर मिलता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक ऑड नंबर हमारे पास था 7, अगला ऑड नंबर क्या होगा 9, कैसे आया, उसमें 2 ऐड करके आया ना, देयरफॉर हमें 2 ऐड करके ही नेक्स्ट ऑड नंबर मिलेगा। अब इसके बाद वाला ऑड नंबर कैसे मिलेगा, इसमें 2 ऐड करके, दैट मींस x प्लस 2 मतलब x प्लस 4 हो जाएगा। तो तीन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होंगे, x प्लस 2 एंड x प्लस 4। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम किसके इक्वल है, देयर सम इज इक्वल टू 75। इनका तीनों का सम किसके इक्वल है, 75 के इक्वल है। तो इनका सम कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 75। ठीक है, so this will give us x plus x plus x 3x plus 4 plus 2 6 is equal to 75. So 3x will be equal to 75 minus 6. 3x will be equal to 69, and so from here we can get the value of x, that will be 69 upon 3. 3 to 6, 3 3 9. So from here x will be equal to 23. क्योंकि हमें तीनों नंबर फाइंड करने, पहला नंबर x था तो सेकंड नंबर कितना होगा, सेकंड नंबर is equal to x plus 2, that means it will be 23 plus 2, that is 25. second number है 25. similarly third number भी फाइंड कर सकते हैं, third number will be equal to x plus 4, that is 23 plus 4, that will be equal to 27. so from here we can say that the first number was 23, second number was 25 and the third number was 27. so this question is really very important. So I want you to solve this question again by yourself also, so that you can get the clear idea of this question. Then let's move further to the more questions of this exercise. ठीक है, चलिए I'll be telling one question based upon the digits also. ठीक है, and one question based on the fractions also. So I am telling you question number 18, which is based on fractions. So question number 18 is saying that the denominator of a fraction is one more than the double the numerator. फिर से पढ़ेंगे, question is saying that denominator of a fraction is one more than double the numerator. ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि let the numerator of the fraction is equal to x. So we have let the numerator of the fraction is equal to x. ठीक है, हमें पता है जब ये फ्रैक्शन आप बनाते हो तो वो इस तरीके से होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। ठीक है, हमने क्या लेट कर लिया कि न्यूमरेटर उस फ्रैक्शन का x था, डिनोमिनेटर के लिए क्वेश्चन कह रहा है डिनोमिनेटर है वो एक ज्यादा है डबल द न्यूमरेटर के, है ना। तो डिनोमिनेटर के लिए बोला गया है देयरफॉर डिनोमिनेटर के लिए बोला गया है कि न्यूमरेटर की 2 गुने से मतलब 2x से एक ज्यादा है कौन, डिनोमिनेटर। तो दिस इज द न्यूमरेटर, सो डिनोमिनेटर कितना है 2x plus 1 है। Now later on the question is saying on adding 2 to the numerator and subtracting 3 from the denominator we obtain 1। बोला गया कि अगर इस फ्रैक्शन को हम लोग नोट करें तो हो जाएगा x upon 2x plus 1। फ्रैक्शन ऐसे ही बनेगा, this is numerator and this is denominator। Now later on the question it is saying that on adding 2 to the numerator, अगर न्यूमरेटर में आप 2 ऐड कर दो, ठीक है, and subtracting 3 from the denominator, अगर डिनोमिनेटर में 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ऐसा करने पे फ्रैक्शन 1 हो जाता है। तो दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड द क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व दिस। वी विल गेट x plus 2 अपॉन दिस विल बी 2x plus 1 and -3 will give you -2 is equal to 1 and अपॉन में भी 1 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट सेम वैल्यूज x plus 2 is equal to 2x minus 2। ठीक है, we can shift this 2x over here, we will get x minus 2x is equal to -2 और इसको भी उधर कर देंगे तो ये भी -2 हो जाएगा। this will give us minus x is equal to -4, माइनस से माइनस हट जाएगा तो will be x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 is the value of x। और हमें फ्रैक्शन फाइंड करना था
and we know that हमारा जो फ्रैक्शन है वो कितना है, दैट इज x अपॉन 2x प्लस 1, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज 4 अपॉन 2x मतलब कि 2 into 4 plus 1, सो यू कैन क्लियरली सी कि जो आंसर आएगा दैट विल बी 4 अपॉन 9। तो 4 अपॉन 9 जो है वो हमारा फ्रैक्शन है विच वी वर रिक्वायर्ड टू फाइंड, ठीक है। चलिए, सो आई थिंक यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द फ्रैक्शंस एज वेल by looking at the solution of this question number 18. Now I will be telling one more question which is based on the numbers, okay. So let's see question number 24. Question number 24 is saying that the sum of the digits of a 2-digit number is 9, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स 2 डिजिट नंबर की 9 है, ठीक है। तो वी कैन लेट यूनिट्स डिजिट इज इक्वल टू x। हमने क्या किया, यूनिट डिजिट को आप x लेट कर ले रहे हो। अगर 2 डिजिट नंबर है तो सपोज वो 29 होगा या 13 होगा या 57 कुछ भी ऐसे होगा, तो उसमें 2 डिजिट होंगी, एक यूनिट डिजिट होगी और एक टेस्ट डिजिट होगी। मैंने क्या किया कि यूनिट डिजिट को x लेट कर लिया है, और क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स कितना है, सम ऑफ डिजिट्स दैट इज इक्वल टू 9 क्वेश्चन दे रहा है। अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 है मतलब दोनों डिजिट का सम 9 है, तो सिंपल सी बात है कि जो 10th डिजिट हो जाएगी, 10th डिजिट विल बी इक्वल टू 9 माइनस x। व्हाई? बिकॉज यूनिट डिजिट को हमने x लेट किया। अगर सम ऑफ डिजिट 9 है तो बनी बात है 10th डिजिट कितनी हो जाएगी, 9 माइनस x हो जाएगी, ठीक है। Now question is saying that if 9 is added to the number formed by reversing the digits, then the result is thrice the original number. Find the original number, ठीक है। चलिए, अब कोई बात नहीं, ये हमारी 10th डिजिट है और ये हमारी 1st डिजिट है, ठीक है। अब हम लोग अगर इससे क्या करें, इससे हम लोग फॉर्म करने की कोशिश करें क्या, 2 डिजिट नंबर, तो क्या बनेगा, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर हम लोग लिखते हैं, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर that will be equal to 10 multiply by 9 minus x plus x। क्यों? क्योंकि 10th डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई होता है और यूनिट डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई होता है। तो ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 10 9 minus x plus x। दिस विल बी आवर ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि अगर हम लोग if 9 is added to the number formed by reversing the digits, अगर हम इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो नंबर बन जाएगा 10x प्लस 9 माइनस x, और इसमें अगर हम लोग 9 ऐड कर दें तो ऐसा करने पे क्या हो रहा है, ऐसा करने पे द रिजल्ट इज थ्राइस द ओरिजिनल नंबर। ऐसा करने पे जो रिजल्ट निकल के आएगा, ये रिजल्ट होगा वो ओरिजिनल नंबर का 3 गुना होगा, विल बी 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। और ओरिजिनल नंबर कितना था, 10 ब्रैकेट में 9 माइनस x प्लस x। थोड़ा सा लैंग्वेज डिफिकल्ट है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन कह रहा था सम ऑफ डिजिट्स 9 था, मैंने एक डिजिट को x लेट किया तो दूसरी डिजिट 9 माइनस x हो गई। इससे 2 डिजिट नंबर फॉर्म किया तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस x प्लस x हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर हम इनकी डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं तो बन जाता है 10x प्लस 9 माइनस x, और इसमें अगर 9 जोड़ देते हैं तो ऐसा करने पे जो रिजल्ट निकल के आता है, ये रिजल्ट वो ओरिजिनल नंबर का 3 गुना होता है। So this is the whole idea behind the scene and we have to solve for x. So let's start. This will give us 10x plus 9 minus x plus 9, ठीक है। इसको आप देख लो ऐसे कैसे, 10 माइनस x हो जाएगा 9x और 9 प्लस 9 हो जाएगा 18। तो मैं इसको सीधे लिख देता हूँ 9x प्लस 18, ठीक है। इधर का जो आएगा दैट विल बी 9x प्लस 18, ठीक है। अब इधर जाते हैं, 3 को बाहर ही छोड़ देते हैं फिलहाल, इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल गिव यू 90 माइनस 10x प्लस x। फिर फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 10x कर लिख देता हूँ, 10 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय दिस विल गिव यू 90 माइनस 9x, ठीक है। अभी 3 का मल्टीप्लाई अंदर होगा, वी विल गेट 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 270 माइनस 27x।
Bring this 27x to the right of this, to the left of this equal to sign. We will get 9x plus 27x is equal to 270 minus 80. इसको ऐड करेंगे, we will get 36x is equal to 270 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे, we will get 252. ठीक है, अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू निकालना है तो 252 अपॉन 36 कर देंगे. आई थिंक 7 टाइम्स से पूरा कैंसिल हो जाएगा. तो क्लियरली यहाँ से x की वैल्यू हमको मिल गई 7. एंड द क्वेश्चन इज सेइंग दैट यू हैव टू फाइंड द ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर क्या था, ये था. यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट कर देंगे. नंबर विल बी इक्वल टू 10. 9 minus x plus x is the number. Put the value of x over here. 10 multiplied by 9 minus 7 plus 9. This will be 10 multiplied by 2 plus 9. नंबर कितना आ गया, 29 is the number जिसकी हम बात कर रहे थे. So this is the whole idea behind the question which we have done. Okay? So all the other parts are your homework, and you are supposed to be solving all these questions by yourself. And if you find any kind of doubt or problem, you can come to school on Saturday and you can ask the problems. Next Saturday को आप आके पूछ सकते हैं problems chapter. ठीक है? This is the completion of chapter of your syllabus as well. And your syllabus for the second term exam is from from chapter number 4 to chapter number 15. This will be coming in your half yearly examinations. So you should prepare all these chapters by looking at the videos, and the doubts will be cleared by me on the Saturdays. Okay, thank you.